Hello students, today I am going to start physical quantities part 2 of class 11th. Students, in the previous class I have taught you, I have explained about the physical quantities and what is physical quantity, intensive and extensive property of the physical quantity and so on. Also I have given a lot of examples related to physical quantities. Students, today I will teach you part 2 of the physical quantities. Okay, तो अपनी कॉपी और कलम निकाल कर और लिखना शुरू कर दें. Students, there were only 3 fundamental physical quantities. Initially there were 3 fundamental physical quantities known as length, mass and time. प्रारंभ में सबसे पहले लेंथ, मास और टाइम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया. स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब, आई विल डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल quantities. Fundamental physical quantities, those quantities which are independent from any other quantity. Those quantities which are independent from any other quantity called fundamental quantity, and there is no need of any other quantity for the representation, for the explanation of quantities known as fundamental quantity. So I can write those quantities which are independent, which are independent of any other quantity, any other quantities. There is no need, as well as there is no need any other quantity for the representation or explanation known as fundamental quantities. स्टूडेंट्स, वैसे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य क्वांटिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है. Those quantities which are independent from any other quantity, वैसे क्वांटिटीज जो अन्य किसी क्वांटिटी से बिल्कुल स्वतंत्र होता है और there is no need of for the representation or explanation, then we say those are the fundamental quantities. Basic quantities, also known as basic quantity, it is also called basic quantity. Fundamental quantities of basic quantities. Basic
क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होता है, किसी की सहारे की जरूरत नहीं होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है फॉर एनी अदर क्वांटिटी कहलाता है वह फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल, इनिशियली there were three fundamental physical quantities. Three fundamental physical quantities. प्रारंभ में स्टूडेंट्स 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लाया गया। उनका नाम था लेंथ, मास और टाइम। Initially there were 3 fundamental physical quantities: length, mass and time. Length, mass and time, यही 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। इनिशियली देयर वेर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास एंड टाइम। Initially, there were 3 fundamental physical quantities: length, mass, and time. Students, आप इसे नोट यदि करना चाहते हैं तो नोट कर लें। Copy it just a student, and I hope all of you have copied it. So I am going to delete it. Okay, students, so just I have explained, initially there were 3 fundamental physical quantities. What is fundamental? Just I have explained. So initially, just I have written here, initially there were 3 fundamental physical quantities known as, प्रारंभ में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लाया गया। इनिशियली देयर वेयर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास एंड टाइम। क्या था? तो लेंथ एज लेंथ, मास एंड टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे प्रारंभ में। On the basis of these 3 fundamental quantities, we find the unit, we find the dimensions and any other things with the help of these 3 fundamental quantities. So any other quantities except these 3 fundamental quantities are known as derived quantities. Now second thing, derived quantities. प्रारंभ में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आया, लेंथ, मास और टाइम, और उसके स्टैंडर्ड जो यूनिट्स उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और बाद में डेराइव्ड क्वांटिटीज आई, DERIVED, डेराइव्ड क्वांटिटीज, those quantities which can be represented in terms of the fundamental quantities are called derived quantities. Those quantities which can be represent in terms of fundamental quantities, fundamental
quantities, those quantities which can be represented in terms of fundamental quantities called derived quantities. Derived quantities. वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता हो, रिप्रेजेंट किया जाता हो, तो हम कहते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे एरिया, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, इट कैन बी रिप्रेजेंट in terms of the fundamental quantity length. Volume, density, speed, etc. All these are derived quantities because these quantities can be represented in terms of the fundamental quantities. Students, एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और इसके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज जब जान गए, तब अब हम लोग ये देखेंगे कि डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद इनका यूनिट क्या होगा। व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। बाद में चलकर ये क्वांटिटी जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज थोड़ा लार्ज स्केल पर आया। इनिशियली 3 थे, बाद में अभी जब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी तब there are 7 fundamental physical quantities. Just I am going to explain and I will write on the blackboard. तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। Okay, so फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देयर वेयर adopted the systems, developed the systems. Initially CGS system, system has developed on the basis of 3 fundamental physical quantities known as first system for the measurement has developed, system for measurement has developed, have developed on the basis of 3 fundamental physical quantities. 3 fundamental यहाँ लिख दो, 3 fundamental physical quantities. क्वांटिटीज 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस मानते हुए सिस्टम अडॉप्ट किया गया। इनिशियली द फर्स्ट सिस्टम वाज CGS system. This system, what is CGS system, sir? What is the full form of the CGS system? I don't know. कहाँ आप बता रहे हैं, ऐसा दिमाग में स्टूडेंट्स आपको आता होगा तो आप देख लें। CGS सिस्टम जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम,
चूंकि आपके पास तीन फंडामेंटल है क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं को बेस मानते हुए इन्हीं पर बेस्ड तीन सिस्टम्स बनाया गया। द फर्स्ट सिस्टम वाज CGS system. Initially, length is measured in terms of centimeter, length centimeter, mass gram, and time in second. So the full form of the CGS system is centimeter gram second system. It is centimeter gram second system, CGS system. And in this system, unit of length has measured in this system, unit of length has measured, unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. Now arise a lot of questions, many questions arise in your mind, in your brain. Sir, CGS system, centimeter gram second system, आपने कहा कि in this system unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. आपने तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअली यूनिट है क्या, उसको थोड़ा बता दें सर। यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट है क्या? स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। फॉर द मेजरिंग और वेइंग ऑफ एनीथिंग, किसी को मापने या तौलने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम लोग यूनिट कहते हैं। व्हाट इज यूनिट? यूनिट है क्या? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या तौलने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। दैट स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। फॉर मेजरिंग or weighing of any physical quantity, it is needed a standard measurement in terms of the quantity. That a standard measurement is called unit. So सबसे पहले आप यूनिट के बारे में जान लें स्टूडेंट्स। यूनिट एक्चुअली क्या है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यूनिट के बारे में जान लें, तब आपको CGS सिस्टम जो है क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम, MKS सिस्टम, ऑल दीज आर सिस्टम्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है? यही हमारा फिजिक्स यहीं से शुरू करना है। यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट से। तो यूनिट एक्चुअली है क्या? व्हाट इज यूनिट? इकाई, हिंदी में इसको इकाई कहते हैं, मात्रक कहते हैं, मतलब यूनिट। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरिंग और वेइंग of any physical quantity, it is needed
a standard measurement, a standard measurement, it is needed a standard measurement in terms of the quantity, in terms of the quantity, in terms of the quantity. स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को मापने या तौलने के लिए, फॉर मेजरिंग और वेइंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, it is needed a standard measurement in terms of the quantity. So that a standard measurement is called a standard measurement. That a standard measurement is called unit. उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को यूनिट कहते हैं। पहले आप जानते होंगे, आप अपनी नानी माँ से, दादी माँ से जब बात शेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के समय में यूनिट जो है किलोग्राम नहीं था, शेर था। शेर के भी पहले वह भी नहीं था, शेर पसेरी जो था उसके पहले वह भी नहीं था। उस समय हम लोग किसी एक को स्टैंडर्ड मेजरमेंट मान लेते थे। जैसे मान लो तुम्हारे घर में राहर का दाल है और हमारे घर में मसूर का दाल है, तो आपकी दादी माँ कहती थी कि 2 कटोरा या 2 डब्बा मसूर का दाल ले लो, 1 डब्बा अरहर का दाल दे दो। चूँकि अरहर की दाल की उपज कम थी, उसको ज़्यादा अधिक कॉस्टली माना जाता था, तो इस तरह से मेजरमेंट होता था। बेचने वाली जब आती थी, शकरकंद बेचने वाली, गजरा बेचने वाली, अमरूद बेचने वाली, बैर बेचने वाली देहात में जब आती थी, तो 1 डब्बा बैर देती, 5 डब्बा धान लेती थी, तो वही उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट था। तो स्टूडेंट, मेजरमेंट एक्चुअली जो है धीरे धीरे डेवलप करते गया। आज हम लोग उस दुनिया में पहुंच गए जहां पर एक तरह का मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। किसी भी कंट्री में जब चले हम लोग जाते हैं तो एक ही तरह का यूनिट मिलता है। चीनी लेना है तो किलोग्राम में, चाहे चाइना में लो, इंडिया में लो, रूस में लो, जापान में लो, थाईलैंड में लो, टोक्यो में लो, कहीं भी लो, चीनी केजी में ही मिलेगा। तो यह एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। स्टूडेंट, यूनिट एक्चुअली क्या है? फॉर द मेजरिंग और वेइंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नीडेड ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी। दैट स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। सपोज करो यू वांट टू टेक द वेट ऑफ एन एलिफेंट। आप एक हाथी का वजन लेना चाहते हैं। कल्पना करो, आप एक हाथी का वजन लेना चाहते हैं। यू वांट टू टेक द वेट ऑफ एन एलिफेंट, बट यू हैव नो एनी स्टैंडर्ड मेजरमेंट, क्विंटल, टन, किलोग्राम, मन। There are no any other things for the measurement of the for the measurement to take the weight of the elephant. आपके पास क्या है भाई? तो आपके पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के रूप में बकरी है। You want to take the weight of an elephant and you have a standard measurement as a goat and the elephant is 200 heavier than the goat. आपके पास एक बकरी है और आप एक हाथी का वजन लेना चाहते हैं। The weight of the elephant is 200 heavier than the weight of the elephant, weight of the goat, sorry, weight of the goat. So we say the weight of the elephant is 200 goats. 200 goats. स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि एक हाथी का वजन मुझे लेना है और हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए वेट के फॉर्म में हमारे पास एक बकरी है और हाथी जो है उस बकरी से 200 गुना भारी है। द
the elephant is elephant is 200 heavier than the weight of the goat. The weight of the goat. So we say. The weight of elephant is the weight of the elephant is elephant is 200 goats. 200 goats. 200 बकरी. यही इसका 200 goats, not 200. The weight of the elephant is 200 goats. हम लोग कहते हैं कि उस हाथी का वजन 200 बकरी के बराबर है. यह इनिशियली इस तरह से यूनिट मेजर किया जाता था. सपोज करो हम इस ग्रीन बोर्ड का मेजरमेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन. विद द हेल्प ऑफ पेन. हम लोग एक पेन की मदद से इस ग्रीन बोर्ड को हम लोग ना लेंथ मेजर करना चाहते हैं. तो इसका लेंथ सपोज करो कि जो पेन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया उसके 25 टाइम्स ये इसकी लेंथ बड़ा है. द लेंथ ऑफ द ग्रीन बोर्ड इज 25 टाइम्स